अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के वज़ीर आला का इंदिरा गांधी को यौम पैदाइश पर खराज अकीदत, कौमी यकजहती के दिन पर शहरियों को मुबारकबाद। राहुल गांधी का झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और आरएसएस पर शदीद हमला, कहा हमारी लड़ाई नजरियात की है। कांग्रेस का वजीर आजम मोदी से मणिपुर का दौरा करने और अमित शाह के इस्तीफा का मुतालिबा। वजीर आजम मोदी की G20 इजलास में मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमाओं से दोतरफा मुलाकातें, बाहमी ताउन के नई रास्तों पर तबादले ख्याल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी यौमी पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर तमाम शहरियों को कौमी यकजहती दिन की मुबारकबाद भी पेश की, जो मंगल को इंदिरा गांधी की याद में मनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने इंदिरा गांधी को मजबूत क़यादत और नेहरू की विरासत को जारी रखते हुए आवाम के लिए उनके दौर में की जाने वाली इनकलाबी इस्लाहात की सताइश की। ప్రపంచ దేశాలకు ఒక ఉక్కు మహిళ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా వారు చివరి శ్వాస వదిలినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం మెదకు పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఆఖరి శ్వాస వారు వదిలి ఈ గడ్డ మీద సూర్యచంద్రులు ఉన్నంతకాలం శ్రీమతి ఇందిరమ్మ పేరు మీద పేద ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలకు, మా మహిళా సోదరీమణులకు సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలను అందించాలని ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వరులను చెయ్యాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం కంకణ బద్దులై ఈ వరంగల్ గడ్డ మీద కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు బట్టి విక్రమార్క గారు, మంత్రివర్గ సహచరులందరూ, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు, ఉన్నతాధికారులు, పార్టీ నాయకులు, పిసిసి అధ్యక్షులు, ప్రాణ సమానులైన 33 జిల్లాల నుంచి తరలి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమం మా ఆడబిడ్డలకే అంకితం. ఎందుకంటే ఈనాడు నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా అయినా, నేను ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖకు అధ్యక్షుడిని అయినా, ఆడబిడ్డల ఆశీర్వాదంతోనే, సోనియమ్మ ఇచ్చిన అవకాశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అవ్వడమే కాదు, వీడికి తరలి వచ్చిన వేలాది మంది ఆడబిడ్డలు గ్రామ గ్రామాన, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఇందిరమ్మ రాజ్యం రావాలి, మీ రేవంత్ అన్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని మనసు నిండుగా ఆదరించి ఆహ్వానించి మీ భుజాల మీద మోసిండ్రు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ నాతో సహా ఈరోజు వివిధ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నాం. మరి వివిధ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్న మేము మీ ఆశీర్వాదంతో అవకాశం వస్తే మీకు కృతజ్ఞత తెలుపుకునే బాధ్యత, ఆడబిడ్డలకు అన్ని అవకాశాలు అందించాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు మా పార్టీ మీద, మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే ఆనాడు 2014 నుంచి 2019 వరకు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు మంత్రివర్గంలో ఒక్క ఆడబిడ్డ కూడా మంత్రిగా లేకపోయినా 5 సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్న ఆడబిడ్డలు ఆ తర్వాత ఇచ్చిన తీర్పుతో మొదటి మంత్రివర్గంలోనే మీ అభిమాన నాయకురాలు శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారు, మా సోదరీమణి సీతక్కను ఈరోజు మంత్రివర్గంలో ఈ ఓరుగల్లు గడ్డ మీద నుంచే ఈ ఆడబిడ్డలను మంత్రివర్గంలో ప్రముఖ స్థానం ఇచ్చి ఈనాటి ఈ సభా నాయకత్వాన్ని కూడా
ఆ ఆడబిడ్డల చేతుల్లోనే పెట్టడం జరిగింది. ఇదే కాదు, వరంగల్ పార్లమెంటు నుంచి కూడా డాక్టర్ కడియం కావ్యను ఈరోజు పార్లమెంటు సభ్యురాలుగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి పార్లమెంటులో గలం విప్పుతుందంటే ఒక ఆడబిడ్డ ఈరోజు వరంగల్ ప్రాంతం నుంచి పార్లమెంటుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అదే కాదు, పాలకుర్తిలో మీకు తెలుసు, ఒక రాక్షసుడు అక్కడ రాజ్యమేలుతుంటే మీ సోదరిమణి యశస్విని రెడ్డి ఆ రాక్షసుని బండ, ఆయన పెద్ద రాజకీయ కొండ కదా, ఆ కొండను ఎట్లా ఢీకొంటామని పాత్రికేయ మిత్రులు అడిగితే కొండైనా దెబ్బ కొడితే పగులుతుందని చెప్పి ఆ కొండను బద్దలు కొట్టి పాలకుర్తి గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఎగరేసింది కూడా ఈరోజు ఆడబిడ్డనే అన్న సంగతి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా. ఇవాళ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చీఫ్ సెక్రటరీగా ఆడబిడ్డనే ఉన్నది. ఈరోజు మహిళా అధికారులు అనితా రామచంద్రన్ గారు కానీ, దివ్య గారు కానీ, ఈరోజు సృజన గారు కానీ, వరంగల్ అదేవిధంగా హనుమకొండ కలెక్టర్లుగా ఈరోజు ఆడబిడ్డలే అధికారంలో ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ వరంగల్ కార్పొరేషన్కి మేయర్గా కూడా ఆడబిడ్డనే ఉన్నది. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఈరోజు ఇందిరమ్మ జయంతి సందర్భంగా ఈ వేదిక మొత్తం, వేదిక మీదనే కాదు వేదిక ముందు కూడా వేలాది మంది ఆడబిడ్డలే ఇది ఆడబిడ్డల రాజ్యం అని ధైర్యంగా చెప్పుకునే అవకాశం ఈ ప్రభుత్వం మాది, మా అధికారం నడుస్తుంది అని ఆడబిడ్డలు గుండె ధైర్యంతో మాట్లాడే అవకాశం ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఉదయం ఈరోజు నేను స్వయం సహాయక సంఘాలకు సంబంధించిన ఆడబిడ్డల స్టాల్స్ నేను చూస్తే పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తల కంటే, ఒకప్పుడు పారిశ్రామికవేత్తలంటే టాటాలు, బిర్లాలు, ఆ తర్వాత అదానీ, అంబానీలో గురించి విన్నాం. కానీ ఈనాడు మన కళ్ళ ముందు ఆ స్టాల్స్ చూసినప్పుడు ఇవాళ మా ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టులు ఇవ్వాలని, 1 కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వరులను చెయ్యాలన్న ఆలోచన. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में मुनक़िदा कोटि दीपोत्सवम तकरीब के दौरान भारत की सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ने मुल्क की सकाफ़ती विरासत का तहफ़्फ़ुज़ पे जोर दिया और कहा कि ये इतना ज़रूरी है कि जितना सरहदों की हिफाजत। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत सिर्फ एक सियासी मुल्क नहीं है बल्कि एक सकाफ़ती शनाख्त है जिसकी हज़ारों साल की तारीख़ है। अगर हम अपनी सकाफ़त को खो देंगे तो अपनी शनाख्त भी खो देंगे। में दीपक का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे लिए दीपक सिर्फ अंधकार को नष्ट ही नहीं करता है बल्कि वह हमें कई सारे दूसरे संदेश भी देता है। आज जब हम सब इस भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं तो हमें इस तरह के आयोजनों के महत्व को भी समझने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे आयोजन हमें क्यों और क्या मैसेज देते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसे कार्यक्रम सिर्फ दीप जलाने तक सीमित हैं या यह बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे करने तक ही सीमित हैं, या फिर ऐसे आयोजन इन सबसे इतर भी हैं, हमें जीवन के कुछ संदेश भी देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजनों का महत्व सिर्फ लोगों के एकत्र होने भर का या दीप जलाने भर का ही नहीं होता है। इस तरह के आयोजन हमें कई सारे संदेश देते हैं। मेरी समझ में ऐसे आयोजन हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण संदेश मैं समझता हूँ देवियों व सज्जनों, वह है एकता का, यूनिटी का मैसेज ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है। आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति अकेले अपने दम पर प्रयास करता है तो स्वाभाविक है कि उसके इफ़र्ट्स का प्रभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है बल्कि कम होता है। लेकिन यदि कई सारे व्यक्ति मिलकर प्रयास करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना यह ज़्यादा आसान होता है। और ये दीपक हमें इस बात का संदेश दे रहे हैं कि समाज में एकता बनाए रखना आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें एक रहना होगा। जब हम एक होकर काम करेंगे तो हम इन दीपकों की तरह हमारा भी प्रकाश सारे विश्व में फैलेगा। और यदि हम
एक नहीं रहे तो हमारे सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब हम बटे हैं तब तब हम हारे हैं, तब तब हमें पीछे होना पड़ा है। जब जब हमारी एकता कमज़ोर हुई है तब तब आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए हमें इतिहास से सीखते हुए और इस दीपोत्सव से सीख लेते हुए इस बात का हमें प्रण लेना है कि हम हमेशा एक रहेंगे। बांटने वाले लोग बहुत तरीके से आपको बांटने का प्रयास करेंगे। कोई आपको अलग अलग धर्मों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग जातियों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग संप्रदायों में बांटेगा, लेकिन आपको बंटना नहीं है। आपको न बंटना है न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है और एकजुट रहना है। इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित एवं सशक्त भारत का हम निर्माण करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बल, अर्थात एकता समाज का बल है और जो समाज यूनाइटेड नहीं होता है वह समाज स्वाभाविक रूप से दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है कि हमें इन दीपकों की तरह मिलकर जगमगाना है और पूरे देश में प्रकाश फैलाना है। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमको प्रकाश फैलाना है, क्योंकि पूरे विश्व में अकेला देश यह भारत है जिस भारत देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह में से सारे विश्व को देने वाला कोई देश है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। साथियों, ऐसे आयोजनों का जो दूसरा संदेश मुझे लगता है वह है हमारे भीतर एक उत्साह का, उमंग का संचार। कोटि दीपोत्सव जैसे महोत्सव हमारे अंदर उत्साह का संचार भी करते हैं। किसी भी देश या समाज की प्रगति के लिए एकता के साथ साथ उत्साह का भी, इंथुजियाज्म का भी यह होना बहुत ज़रूरी है। और भले ही बहुत हमारी और आपके बीच, सभी के बीच एकता हो, पर किसी कार्य के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति यदि लोगों में उत्साह नहीं है तो ऐसी एकता का भी कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। आज का यह जो आयोजन है यह हम भारतीयों के उत्साह का प्रतीक है। ये उत्साह हमें जीवन में कभी हारने नहीं देगा। ये उत्साह हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत देगा, साहस देगा। आप सबको याद होगा कि कोरोना के समय कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से दीपक जलाने की अपील की थी। पूरे देश ने एकता के साथ साथ उत्साह का भी संचार दिया। हर घर में दिए जलाए गए। इससे कोरोना वॉरियर्स को हिम्मत मिली, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस मुश्किल घड़ी में भी भारत किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों में एकता के साथ साथ उत्साह का संचार करने के लिए कोटि दीपोत्सवम जैसे आयोजन बहुत ही प्रभावी सिद्ध होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं श्री नरेंद्र चौधरी गारू और उनकी पूरी यन टीवी और भक्ति टीवी को इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। देवियों सज्जनों, पूरे देश ने एकता के साथ साथ उत्साह का भी झारखंड की असेंबली की 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाली दूसरे और आखिरी मरहले के इंतखाब से कबल लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने झारखंड की राजधानी रांची में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि हमारी ये लड़ाई नज़रियात की है। इंडिया इत्तेहाद है जो आइन की हिफाजत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है जो आइन पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मौके पर एक बार फिर अपने अज़्म का इजहार किया कि हम मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदूमशुमारी करवाएंगे ताकि मुल्क को बताया जा सके कि यहाँ किसकी कितनी शराकतदारी है। किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो शक्तियाँ जो
संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दो तीन चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉरपोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। फाउंडेशन हमारा हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है। झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी। और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं, उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। स्वास्थ्य योजना, राजस्थान में हमने एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना लागू की थी। 25 लाख रुपए तक का वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस था और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। ऑपरेशन करवाना हो, हार्ट, पेट का, किडनी का, हार्ट का वैल्व बदलना हो, स्टेंट लगवानी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकता था। वही एक्सपीरियंस हम झारखंड के लोगों को देना। मणिपुर में बढ़ते तशद्दुद के बीच कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो पार्लिमानी इजलास से कबल मणिपुर का दौरा करे। कांग्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफा का भी मुतालबा किया है, जिससे डबल इंजन सरकार की मुकम्मल नाकामी करार दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि वजीर आजम मोदी को मणिपुर के कुल जमाती वफ्द से मुलाकात करनी चाहिए और इसके बाद 25 नवंबर से शुरू होने वाली पार्लिमानी इजलास से कबल कौमी सतह पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब करनी चाहिए। AICC हेडक्वार्टर में मेगा चंद्र सिंह,
सदर मणिपुर कांग्रेस और गिरीश चौदंकर और आईसीसी इंचार्ज मणिपुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने मजीद कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, पर मणिपुर जाने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है। ये बड़ी अजीब सी बात है और मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार है एक राज्य में इतना संकट है, दर्द है, पीड़ा है और प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए हों। तो हमारी पहली मांग तो ये है, हम मांग करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री समय निकालें और जल्द से जल्द हो सके पार्लियामेंट के सत्र के शुरुआत के पहले 25 नवंबर के पहले जल्द से जल्द 1-2 दिन के लिए मणिपुर जाएं, मणिपुर के राजनीतिक दलों से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक संस्थाओं से मिले, रिलीफ कैंप में जाएं जहां 60,000 लोग से भी ज़्यादा आज रिलीफ कैंप में हैं। तो ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आपके सामने रखा है कि फौरन प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, मणिपुर के ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिले, समझे क्या क्या हो रहा है। अभी न केवल कांग्रेस एमएलए बल्कि बीजेपी के एमएलए के घर को भी जलाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मणिपुर के नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं के साथ। आज तक मणिपुर के विषय में सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। तो यह हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग क्या है? 31 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 से मणिपुर में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है, फुल टाइम गवर्नर नहीं है। 31 जुलाई 2024 से। उसके पहले एक प्रतिष्ठित आदिवासी महिला राज्यपाल थी, उनको 18 महीने के अंदर ही हटाया गया। क्यों हटाया गया? और आज भी फुल टाइम गवर्नर, पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है मणिपुर में। और हम मांग करते हैं कि फौरन जल्द से जल्द एक पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया जाए। हालांकि ये प्रतिष्ठित आदिवासी महिला जो राज्यपाल थी, उनको हटाना इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमारी चौथी मांग यह है कि पिछले 18 महीने से ये बिल्कुल साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री पर सब छोड़ दिया है, यानी कि मणिपुर को आउटसोर्स कर दिया है गृह मंत्री को। तो ये अजीब सी जुगलबंदी, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के नाकाम मुख्यमंत्री, इनके बीच में जुगलबंदी क्या है? क्यों केंद्रीय गृह मंत्री लगातार मणिपुर के मुख्यमंत्री की विफलताओं को संज्ञान में नहीं लिया? इन्होंने नजरअंदाज किया है और मणिपुर के मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। ये अजीब सी जुगलबंदी क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री और एक
मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिनकी विफलताएं सब लोग जानते हैं, सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग तंग आ चुके हैं, उन्हीं के पार्टी के कई विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, पर केंद्रीय गृह मंत्री उनको बचाने में लगे हुए हैं। ये क्यों? ये अजीब सी जुगलबंदी क्यों? इसके पीछे राज क्या है? क्यों खिसखिसा रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं गृह मंत्री मुख्यमंत्री को हटाने में? और पांचवी मांग हमारी जो ये है, और ये बार बार उठते रहता है मणिपुर के संदर्भ में, अगर बीजेपी सरकार, अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ईमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के दौरान इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, इटली, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें की और हिंदुस्तान के साथ उनकी ममालिक की बाहमी ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मोदी ने इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की और उन्हें हिंदुस्तान की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान इंडोनेशिया की जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ नई शोबों में इसके दायरे कार को वसअत देने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी ने पुर्तगाल के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए मैशियत, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, अवामी रवाबित और कसीरुल यकजहती फॉर्म्स में ताउन के अहम शोबों पर बातचीत की। हुकूमत ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाही इजलास की तैयारियों के लिए 24 नवंबर को कुल जमाती इजलास तलब किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपनी एक्स पोस्ट में ऐलान करते हुए कहा है कि ये मीटिंग सरमाही इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल करने के लिए की जा रही है। इजलास 20 दिसंबर तक जारी रहेगा और इस दौरान मुख्तलिफ कौमी व बैनुल अक़वामी मसाइल पर बहस की जाएगी। कुल जमाती इजलास का मकसद हुकूमत की जानिब से सरमाही इजलास के एजेंडे के बारे में तमाम सियासी जमातों को आगाह करना और उन्हें इस बात पर राजी करना है कि इजलास के दौरान किसी किस्म की रखना अंदाजी न हो। माजी में भी इस तरह की मीटिंग हर इजलास से कबल तलब की जाती रही है ताकि हस्ब इख्तलाफ और हुकूमती जमातों के दरमियान बेहतर मवासलात और अफ़हम तफ़हीम की फ़ज़ा कायम हो सके। हिंदुस्तान ने एक और बड़ी पेशरफ्त करते हुए अपनी पहली 24 घंटा चलने वाली ऑनलाइन कोर्ट का आगाज़ कर दिया है, जो कि केरला के कोलम में मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। 20 नवंबर बुध से इस अदालत में मुख्तलिफ केस की समाअत शुरू होगी, जिसमें सेटलमेंट एक्ट के तहत चेक के मामलात भी शामिल है। इस ऑनलाइन कोर्ट की सबसे बड़ी खुसूसियात यह है कि ये 24 घंटा फ़ाल रहेगा, जिससे लोगों को किसी भी वक्त अपने मुकदमात की समाअत की सहूलत मिलेगी। इस ऑनलाइन कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट और 3 मुलाजिमीन होंगे और मुकदमात कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। केस दायर करने के लिए अदालत की वेबसाइट पर मखसूस फॉर्म भरना ज़रूरी होगा। इसके अलावा कोलम बार एसोसिएशन हॉल में वकीलों और क्लर्कों को पीर को अदालत के काम से मुतालिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये अदालत किसी भी जिस्मानी सरगर्मी के बगैर चलाई जाएगी, यानी न तो मामला दाखिल करने वाले अफराद को और न ही वकीलों को अदालत में जिस्मानी तौर पर पेश होने की ज़रूरत होगी। तमाम मुकदमात की समाअत, बहस और फैसले मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होंगे। पुलिस स्टेशनों को भी ऑनलाइन खतूत भेजे जाएंगे और मुल्ज़िमान या केस फाइल करने वाले अफराद को भी अपनी अर्जी ऑनलाइन ही दाखिल करनी होगी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने ब्राज़ील में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही इजलास से ख़िताब किया। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अपने ख़िताब में शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने आलमी सतह पर बढ़ते हुए तनाज़ा, अस्करी तनाज़ात और इंसानी बहरानों की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि दुनिया को इन मसाइल का सामना है जो पायदार तरक्की में रुकावट डाल रही है। उन्होंने गाज़ा और लिबनान में जारी इजरायली जारहियत को एक बड़ा इंसानी बहरान करार देते हुए कहा कि इस जारहियत ने इंसानी तकालीफ और मसाइल में बेहद इजाफा किया है और खित्ते को एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है, जिससे आलमी कानून और इदारों के साख को भी नुकसान पहुंच रहा है। शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने गाज़ा में फौरी जंग बंदी की अपील करते हुए इमदादी कार्रवाइयों के लिए महफूज रास्तों की फराहमी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सऊदी अरब के मौक़िफ़ का इआदा किया है और कहा कि यरगमालियों की रिहाई और 1967 की सरहदों के मुताबिक 2 रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत की जाए। Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, I'd like to convey the greetings of the custodian of the 2 holy mosques and His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, as well as their sincere wishes for a successful summit.
I would also like to thank the Federative Republic of Brazil for leading this year's G20 proceedings. Under the timely theme of building a just world and a sustainable planet, our countries have deliberated vital issues and challenges facing multilateral action. We are called upon to assess and bolster the global economic landscape, enhance development, work together to end hunger and poverty, and contribute to strengthening international institutions. The Kingdom believes the G20 provides a valuable platform to address these issues. Excellencies, the world is facing rising tensions, military conflicts, humanitarian crisis, and economic fragmentation, which hinder efforts to achieve essential developmental targets, including the 2030 Sustainable Development Goals. Development and prosperity cannot be achieved on the heels of death and destruction. The ongoing Israeli aggression in Gaza and Lebanon has produced unprecedented levels of human suffering and is pushing the region to the brink of a wider war. The war has been undermining the very credibility of the international law and institutions. In addition, reckless voices are proposing reoccupation and even annexation of Palestinian territory. We have warned that Israeli aggression will cause this reality and that its repercussions will impact the international community. Our position has been consistent on the need for an immediate ceasefire, unhindered access to humanitarian aid, the release of civilian hostages and detainees, and a serious commitment to lasting peace based on a two-state solution in line with the 1967 borders. The conflict in Sudan also continues to cause great human suffering, not least due to obstacles to access for humanitarian aid. These and other conflicts amplify the already serious problem of food security. As the session title suggests, food security remains a key global challenge despite significant progress in science, technology, and innovation. This requires enhanced efforts and collaboration to create practical solutions, guaranteeing sustainable and inclusive food systems for all. In this regard, we commend Brazil's launching of the Global Alliance Against Hunger and Poverty, which we view both as a timely and crucial step in addressing global food insecurity. The Kingdom is pleased to be a part of this alliance, which aligns with our own development goals. In the fight against hunger and poverty, the Kingdom aims to foster collective efforts as well as enhance bilateral programs through the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center and the Saudi Fund for Development. Globally, we contribute to key financial institutions programs such as the IMF's Poverty Reduction and Growth Trust and the World Bank's International Development Association. On a regional level, the Kingdom mobilized over $10 billion in partnership with the Arab Coordination Group to support developing countries in confronting food security crises. We remain committed to the vital task of bolstering international efforts to address key challenges hindering the pace of sustainable development. Thank you, Mr. President. आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना के वजीर आला का इंदिरा गांधी को यौम पैदाइश पर खराज अकीदत, कौमी यकजहती के दिन पर शहरियों को मुबारकबाद। राहुल गांधी का झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और आरएसएस पर शदीद हमला, कहा हमारी लड़ाई नजरियात की है। कांग्रेस का वजीर आजम मोदी से मणिपुर का दौरा करने और अमित शाह के इस्तीफा का मुतालिबा। वजीर आजम मोदी की G20 इजलास में मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें, बाहमी ताउन के नई रास्तों पर तबादला ख्याल। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।